गुड इवनिंग। आज स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट 12th क्लास का चैप्टर नंबर 1। सॉलिड लिक्विड गैस। इन केस ऑफ गैस, इंटर एटॉमिक और इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस इज वेरी लार्ज in case of gas, but in case of solid, if you apply external force, then there is no compression. ठीक है, almost it behave as a rigid body. Rigid body means if you apply external force, then there is no compression, there is no change in volume. Anyway, लिखना स्टार्ट कीजिए। जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड स्टेट। जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड स्टेट। जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड स्टेट। फर्स्ट point, they have definite mass, volume and shape. They have definite volume, mass and shape. It means if you apply external force in case of solid, then its total mass remains same, its volume remains same and its shape size remains same. It is the characteristic of rigid body. जो पढ़ते हैं हम लोग मैकेनिक्स में भी। If you apply external force, if shape size remains same, this type of body is known as a rigid body. So first characteristic, they have definite mass, volume and shape. Second characteristic, second लिखो, intermolecular distance are very short, very small. Interatomic distance is very less. समझो, यही तो डिफरेंस है सॉलिड लिक्विड गैस। इन केस ऑफ गैस, interatomic separation very large, liquid थोड़ा सा कम, solid interatomic is very less, so that if you apply external force, then its shape remain same. So first characteristic, mass, volume, shape remain same. Second one, interatomic separation is very less, डिस्टेंस कम, तो इंटर एटॉमिक फोर्स, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स क्या लगेगा? ज्यादा। लिख लिया? पॉइंट नंबर थर्ड, अब ऑब्वियस है इंटर एटॉमिक सेपरेशन कम होगा तो इंटर एटॉमिक, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स क्या होगा? स्ट्रांग होगा। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक, intermolecular force are strong. Intermolecular force are strong. Intermolecular force are strong. Intermolecular force are strong. Fourth point, solid is made of atom or ions or molecule. Their constituent particle, लिखो, their constituent particle क्या क्या है? Atoms, molecules or ions. Their constituent particles have a fixed position, and can only oscillate
only oscillate about their mean position, about their mean position, about their mean position. अब इसके आगे मत देखना, about their mean position. तो फिर से सुनो, फिर से सुनो, फिर सुनो. Point number one, point number one, if you apply external force, shape, mass, volume remain same. Point number two, interatomic, intermolecular separation is very less. Point number third, interatomic force is very strong. Point number four, अब समझो. Inside the solid, due to temperature, all atom, all molecule, all ions vibrate about their mean position, and their vibration is controlled by temperature. Their vibration controlled by temperature. High temperature, more vibration, more amplitude. Less temperature, less vibration. और कम करते जाओ, at 0 Kelvin vibration stop. मीन्स 0 केल्विन से अगर टेम्परेचर ज्यादा है, 0 टेम्परेचर से 0 केल्विन से टेम्परेचर ज्यादा है, तो किसी भी सॉलिड में if temperature of solid more than 0 Kelvin, then all atom, all molecule, all ions vibrate about their mean position, and their vibration is controlled by temperature. समझ में आ गया यहां तक? ठीक है. Next point, they are incompressible and rigid. They are incompressible and rigid. ये तो वही पॉइंट हो गया जो पॉइंट नंबर 1 था. They are incompressible and rigid. Compressible, जिसको कंप्रेस कर सकते हैं, जिसका वॉल्यूम बदल सकते हैं, जिसका वॉल्यूम बदल सकते हैं, उसको बोलते हैं कंप्रेसिबल. याद करो, इलास्टिसिटी इनवर्स ऑफ बल्क मॉडुलस इज कंप्रेसिबिलिटी. तो कंप्रेसिबिलिटी ये टर्म आया कहां से? वॉल्यूम चेंज. एंड इन केस ऑफ सॉलिड, नो वॉल्यूम चेंज, सो इट इज इनकंप्रेसिबल एंड रिजिड. ये सब सारे पॉइंट तो सिंपल है, जो याद भी हो जाएगा. दे आर इनकंप्रेसिबल एंड रिजिड. नेक्स्ट पॉइंट, इनकंप्रेसिबल एंड रिजिड. ठीक है, तो ये सभी सॉलिड के कैरेक्टरिस्टिक जो सिंपल है, सबको याद रहेगा. ठीक है, चलो आगे हेडिंग बनाओ, आगे लिखो. सॉलिड्स आर क्लासिफाइड on the basis of two parameters, on the basis of two different parameters. Classification of solid, solid can be classified into two on the basis of two different parameters. First parameter, first packing of constituent particle. जो सॉलिड जिस पार्टिकल से बना हुआ है, उसका अरेंजमेंट कैसा है? अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल, अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, अरेंजमेंट ऑफ एटम, अरेंजमेंट ऑफ आयंस इन सॉलिड. तो एक बेसिस है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल. Classification on the basis of arrangement of particle, first basis, and second one, force of attraction. Second one, force of attraction among constituent particles. Force of attraction among
कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो सबसे पहला ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इन सॉलिड। तो आज इसी को पढ़ा रहे हैं, सुनो। ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट, two type of solid, crystalline and amorphous. On the basis of arrangement of particle in solid, it is two type of solid, लिखते जाओ। On the basis of arrangement of particle in solid, first type amorphous, first type amorphous। या सुनते भी जाओ, समझते जाओ, पूरे एनसीईआरटी का पार्ट लिखा रहा हूं, उसी समझा रहा हूं मैं, या बाद में बता देना, ठीक है। और जितने पॉइंट मैंने लिखवाया है, बोल रहा हूं, सब तो माइंड में बिल्कुल सेट हो जाए चाहिए, ठीक है। आइए, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट, फिर पढ़ोगे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग constituent particle. So first one, on the basis of arrangement of particle inside the solid, two type of solid, amorphous and crystalline। समझ लो, amorphous and crystalline, ठीक है। amorphous आपके सामने देख लो, खुद आइडिया मिल जाएगा। इट इज amorphous, दो देख लो, खुद समझने का डिफरेंस समझ में आ जाएगा। इट इज amorphous and it is crystalline। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट, क्रिस्टलाइन रेगुलर, बिल्कुल सिमेट्रिकल अरेंजमेंट, रेगुलर अरेंजमेंट। यहां देखो, ये सभी एटम रखे हुए हैं, ये एटम रखा बिल्कुल एक सिस्टमेटिक, एक बिल्कुल सीक्वेंस में रखा हुआ है, तो ये दिख रहा है क्रिस्टलाइन, ठीक है। और इसके ऊपर का देखो, यहाँ बिल्कुल एक रेगुलर अरेंजमेंट है, और एमॉर्फस में देखो रैंडमली, बिल्कुल एक रैंडम रखा हुआ है। क्रिस्टलाइन में एक सीक्वेंस में, एक ऑर्डर्ड वे में है, और एमॉर्फस में डिसऑर्डर है। डिसऑर्डर कोई एक सीक्वेंस में नहीं है। इट इज एमॉर्फस एंड सेकेंड वन क्रिस्टलाइन। समझ ही लो, लिखना बाद में बता लेना। फर्स्ट वन amorphous, second one crystalline। तो सिंपल क्रिस्टलाइन रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल, amorphous रैंडम अरेंजमेंट। देखो दोनों के बीच कंपैरिजन, कुछ और डायग्राम देखो। एक डायग्राम ये दिख रहा है और दूसरा डायग्राम ये दिख रहा है। इसमें देखो बिल्कुल एक सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है, बिल्कुल एक सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है। देखो ये दिख रहा है, आगे गए ये दिख रहा है, आगे गया दिख रहा है, तो बिल्कुल एक सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है। जबकि ऊपर का देखो इट इज इन ऑर्डर्ड वे, जबकि इसको देखो बिल्कुल डिसऑर्डर है। यहाँ देखो इसका साइज, एक इसका साइज, एक इसका साइज, सभी का क्या हो रहा है, डिफरेंट हो रहा है। तो बिल्कुल ये आपका डिसऑर्डर है, जबकि क्रिस्टलाइन में क्या है, ऑर्डर्ड है। तो क्रिस्टलाइन में ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है, बिल्कुल एक रेगुलर सीक्वेंस में है, रेगुलर अरेंजमेंट है, और यहां पर क्या है, ये डिसऑर्डर है। अब ध्यान देना जो आगे काम आएगा, यहां सुनना। अब इसमें भी आप देखो, यहां सुनना, आइसोट्रॉपिक, एनिसोट्रॉपिक, आइसोट्रॉपिक और एनिसोट्रॉपिक, इधर गए, इधर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी। अब इधर गए और इधर गए, दो डिफरेंट डायरेक्शन में अगर उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाए, उसको बोलते हैं आइसोट्रॉपिक। अब तुम ही समझो, ठीक है, सॉरी चेंज नहीं हो, ठीक है। तो यहां पर देखो, आप यहां से गए तो देखो इस लाइन पर गए तो ये रहा, और इस लाइन पे गए तो ये कुछ और हो गया। मीन्स यहां कुछ और अरेंजमेंट था और इधर कुछ और गए, तो ये हो गया एनिसोट्रॉपिक। आइसोट्रॉपिक, इधर जाओ, इधर जाओ, इधर जाओ, इधर जाओ, सभी डायरेक्शन में डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोई चेंज नहीं हो, उस टाइप को बोलते हैं आइसोट्रॉपिक। बदल जाए तो एनिसोट्रॉपिक। क्यों बदला,
यहां से गए तो देखो एटम का अरेंजमेंट, और इधर से दे गए तो कुछ और हो गया। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम नहीं होगा, तो ये कैसा हो गया, एनिसोट्रॉपिक। एनिसोट्रॉपिक। तो अपने को याद रखना है कंपैरिजन बिटवीन आइसोट्रॉपिक, कंपैरिजन बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस। ठीक है, बट मेन चीज यही समझ में आएगा, क्रिस्टलाइन बिल्कुल एक रेगुलर अरेंजमेंट, क्रिस्टलाइन इरेगुलर है, तो वो क्या हो गया, एमॉर्फस। समझो क्रिस्टलाइन का फर्स्ट पॉइंट सिर्फ समझते चलो, these are solids in which the constituent particles are arranged in regular three-dimensional orderly arrangement in which gets repeated throughout. Hence, these are called as long range order solid. Crystalline solid is known as long range solid. मीन्स जो सीक्वेंस था, यहां से यहां गए, इधर गए, इधर गए, तो बिल्कुल एक सीक्वेंस काफी दूर तक बिल्कुल एक ऑर्डर्ड वे में फॉलो कर रहा है, तो वो क्या हो गया, क्रिस्टलाइन लॉन्ग रेंज। अगर कम डिस्टेंस में ही सीक्वेंस खराब हो जाए तो वो क्या हो गया, एमॉर्फस। क्रिस्टलाइन लॉन्ग रेंज, काफी दूर तक उसका सीक्वेंस उसको फॉलो कर रहा है, तो यही बोल रहा है, दीज आर सॉलिड्स in which the constituent particles, atom, molecule or ions are arranged in regular three-dimensional, 3D means जो सीक्वेंस इधर मिला वही सीक्वेंस इधर मिला, वही सीक्वेंस इधर मिला, मीन्स इन ऑल डायरेक्शन, नॉट ओनली इन वन डायरेक्शन, or not only in one direction, in 3D, in all direction, उसी सिस्टमेटिक वे को, उसी सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है। अच्छा ये ध्यान सुनना, ठीक है, तो इधर भी गए वही सीक्वेंस, ये था, अगर इस साइड जाओ, इन ऑल डायरेक्शन रेगुलर अरेंजमेंट, तो वो क्या होता है, क्रिस्टलाइन। अगर इरेगुलर हो गया तो वो क्या हो जाएगा, एमॉर्फस। सो फर्स्ट पॉइंट, टू द पॉइंट, रेगुलर अरेंजमेंट इन 3D, in 3D. Second point, crystalline solid have a sharp melting point. It may change abrupt into liquid state at a fixed temperature. इसका मतलब समझो, शार्प और डिफ्यूज्ड। शार्प मेल्टिंग पॉइंट करने का मतलब ये है कि सपोज इस पेन को मैंने गर्म करना स्टार्ट किए, ठीक है, स्टार्ट किए, टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते गए, अब सपोज जिसे बोलते हैं कि इस ऑब्जेक्ट के मेल्टिंग पॉइंट 100 है या 200 है, मींस जैसे 200 पहुंचा तो बिल्कुल 200 पे एग्जैक्टली ये मेल्टिंग होना स्टार्ट हो गया। अगर एक रेंज हो, ये मेल्ट हुआ 200 से 250 के बीच, अगर एक रेंज हो जाए कि इस रेंज पर ये मेल्ट हो रहा है, तो वो क्या बोलते हैं उसको, डिफ्यूज्ड। तो एक फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट हो, एक फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट हो, एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट हो, किसके लिए, क्रिस्टलाइन। तो क्रिस्टलाइन में शार्प मेल्टिंग पॉइंट, तो जस्ट उल्टा पढ़ोगे, एमॉर्फस डिफ्यूज्ड मेल्टिंग पॉइंट, एक शार्प नहीं, एक रेंज में वो जाके मेल्ट होता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या हो गया, जो पढ़ रहे हो क्रिस्टलाइन जस्ट उल्टा कर दोगे तो amorphous. First point, in all direction in 3D there is long range regular arrangement. In all direction, long distance regular arrangement, then solid is crystalline. Just उल्टा कर देना, short range में regular, not in long range, then it will be amorphous. Second one, sharp melting point for crystalline and diffused melting point for amorphous. For amorphous. Third one, बताए थे, isotropic, anisotropic. Isotropic, anisotropic, anisotropic, crystalline is anisotropic. Crystalline material is anisotropic. Their nature is anisotropic. It means
their physical properties such as mechanical strength, refractive index, इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, तो ये सभी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या हो गया, डेंसिटी हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, थर्मल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ठीक है, अगर सभी डायरेक्शन में सेम हो तो उसको बोलते हैं आइसोट्रॉपिक, सभी डायरेक्शन में सेम नहीं हो तो उसको क्या बोलते हैं, एनिसोट्रॉपिक। तो याद रखना क्रिस्टलाइन सॉलिड इज एनिसोट्रॉपिक। तो जो पॉइंट हम रट रहे हैं, समझ रहे हैं, जस्ट उल्टा कर देना। एमॉर्फस क्या था फर्स्ट पॉइंट, देयर इज रेगुलर अरेंजमेंट इन ऑल डायरेक्शन इन 3D। ठीक है, सेकेंड पॉइंट शार्प मेल्टिंग पॉइंट, थर्ड पॉइंट एनिसोट्रॉपिक। तो जस्ट उल्टा बोलोगे, आइसोट्रॉपिक एमॉर्फस, आइसोट्रॉपिक एमॉर्फस, शॉर्ट रेंज ऑर्डर एमॉर्फस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, कुछ एग्जांपल सुनते हो, घर में प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया। अब तुम रबर को कट करोगे, तो रबर को कट करोगे तो उसका जो कट पार्ट है बिल्कुल स्मूथ नहीं होता है। ठीक है, तो रबर क्या होता है, एमॉर्फस। क्रिस्टलाइन को कट करोगे, उसको कट करोगे तो जो उसका सरफेस मिलेगा बिल्कुल स्मूथ मिलेगा। ठीक है, और जब एमॉर्फस को कट करोगे, घर में रबर को कट कर दो तो उसका जो क्रॉस सेक्शन दिखेगा वो आपका रफ दिखेगा। ठीक है, कट कीजिए विथ ए नाइफ, देन हैव अ शार्प एंड स्मूथ एज। ठीक है, उसको कट करोगे, किसको, क्रिस्टलाइन को। तो क्रिस्टलाइन का कट करने के बाद क्रॉस सेक्शन विल बी स्मूथ एंड शार्प। तो जस्ट उल्टा, एमॉर्फस में रफ दिखेगा। they are considered as a true solid with characteristic enthalpy of fusion। ठीक है, अब एमॉर्फस के जस्ट उल्टा पॉइंट बोलते जाना, जितना पढ़ा आपने जस्ट रिवर्स कर दोगे तो एमॉर्फस। फिर भी देख लो, constituent particles are randomly scattered with no regular arrangement of particle, therefore they do not have any definite shape or form। तो वही चीज पहला पढ़े थे, रेगुलर अरेंजमेंट, लॉन्ग ऑर्डर, लॉन्ग डिस्टेंस, रेगुलर अरेंजमेंट इन 3D, जस्ट अपोजिट। its constituent particles are arranged in some order manner, then this arrangement does not continue for long distance, hence they are short range order in solid। तो जस्ट बच्चा यही हो गया, एमॉर्फस शॉर्ट रेंज ऑर्डर, लॉन्ग रेंज नॉट ऑर्डर, इन क्रिस्टलाइन लॉन्ग रेंज ऑर्डर्ड। उसका क्या था, शार्प मेल्टिंग पॉइंट, जस्ट अपोजिट दे हैव डिफ्यूज्ड मेल्टिंग पॉइंट, इट मींस दे सॉफ्ट over a wide range of temperature instead of melting it at particular temperature। एक फिक्स टेम्परेचर पर मेल्ट हो जाए तो वो शार्प हो गया, और एक रेंज पर मेल्ट हो जाए उसको बोलते हैं डिफ्यूज। तो सो डिफ्यूज मेल्टिंग पॉइंट फॉर एमॉर्फस एंड शार्प मेल्टिंग पॉइंट फॉर क्रिस्टलाइन। वो क्या था, एनिसोट्रॉपिक। ये क्या है, आइसोट्रॉपिक। दे आर आइसोट्रॉपिक बाय नेचर, इट मींस ड्यू टू रैंडम अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल थ्रू आउट द its physical properties such as refractive index, electrical thermal conductivity will have same value in all direction। तो बच्चे ये माइंड में रख ही लो, फिर फटाफट 5 मिनट के अंदर जहां क्लास स्टार्ट किए थे फिर सुनो। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड यहां से स्टार्ट किए थे, फटाफट 5 मिनट सुन लो। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड, they have definite mass, volume, shape if you apply external force। Second point, interatomic distance, inter
particle distance is very less. Third point, interatomic force is very strong. Interatomic force is very strong. ठीक है. एंड फोर्थ वन भी वही चीज है. फोर्थ वन क्या था? दे आर रिजिड. सॉलिड बॉडी इज रिजिड. ठीक है. एंड इनकम्प्रेसिबल. इनकम्प्रेसिबल मीन्स फोर्स लगाए तो उसकी वॉल्यूम में चेंज नहीं होगा. लिक्विड इज कंप्रेसिबल. क्यों कंप्रेसिबल? गैस इज कंप्रेसिबल क्योंकि गैस में मॉलिक्यूल काफी दूर तक है तो तुम मॉलिक्यूल को पास ला सकते हो. लिक्विड में मॉलिक्यूल दूर है तो लिक्विड को पास ला सकते हो. बट सॉलिड में ऑलरेडी बिल्कुल एक मिनिमम डिस्टेंस पर है तो आप और उसको पास में नहीं ला सकते हो. सो सॉलिड इज इनकम्प्रेसिबल एंड रिजिड. तो यहां से मैंने आज क्लास स्टार्ट किया था कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड. उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड. First one on the basis of arrangement of particle in space, and second one on the basis of interatomic intermolecular force जो पढ़ाएंगे नेक्स्ट में. ठीक है. फिर आइए क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल. टू टाइप ऑफ सॉलिड, एमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन. जो भी पॉइंट बोलूंगा क्रिस्टलाइन का जस्ट उल्टा लिख देना, वो हो गया एमॉर्फस का. In crystalline, long range, regular arrangement of particle in 3 direction. Amorphous, just opposite. Second one, sharp melting point for crystalline, just ulta. Amorphous, diffuse melting point. तीसरा point, crystalline is anisotropic, means its physical properties like thermal conductivity, electrical conductivity, refractive index is variable in a different direction. इधर गए कुछ और हो गया, इधर गए कुछ और हो गया, इधर कुछ गए कुछ और हो गया. ये किसके लिए? anisotropic. So crystalline solid is anisotropic but amorphous is isotropic. Amorphous is isotropic. ठीक है. चलो तो आज छोटा सा 1 मिनट हो गया. अब मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में. Classification of solid on the basis of interatomic force. ठीक है. चलो बाय बाय. यहां तक आप लोग एनसीईआरटी पढ़ लेना.